So, my dear subscribers, today I have decided to not call you guys any further. I'll call you all my dear future doctors because you all will be very good doctors, inshallah, in the future. So, from now on, I'll call you all my dear future doctors. My dear future doctors, today we are going to discuss plasma membrane. Plasma membrane or cell membrane. It has several names. First of all, I'll tell you about the discovery of the cell membrane. Basically, it was discovered by Carl Nicolai in 1885. Just remember the date 1885 by Carl Nicolai. It has several terms. We may pronounce it from many different names. These includes plasma lemma, cell surface membrane, neurolemma in case of nervous system, cytoplasmic membrane, cytomembrane, protoplasmic membrane, or the outermost boundary in animal cells, because animal cells don't have any kind of cell wall, so it is the outermost boundary in animal cells. However, in the case of plant cells, we all know that plant cells have another covering, that is cell wall. So plant cells have the cell wall next to the plasma membrane actually in eukaryotic cells and prokaryotic cells also. That includes bacteria and cyanobacteria. They also have a cell wall in addition to the plasma membrane. However, the composition of both the cell wall of plant and prokaryotic cells are different. We have already discussed it in the chapter number 4, actually the topic cell wall. Now we'll discuss about the size of the cell membrane actually. The membrane is about 7 nanometer thick. Remember, it is 7 nanometer thick, means it is very, very delicate. Now we'll move about the chemical composition. It is chemically composed of lipids and proteins. 60 to 80% हमारा proteins है, while 20 to 40% are lipids. In addition, there are small quantities of carbohydrates. Carbohydrates small amounts में present हैं. Proteins major content है 60 to 80%, while the lipids are 20 to 40%. सबसे पहले हम लोग we will discuss about the unit membrane model. Then we will move towards the fluid mosaic model. What is actually unit membrane model? According to the unit membrane model, cell membrane is a lipid bilayer sandwiched between inner and outer layers of proteins. इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमेशा से ये तो कंसीडर किया जाता था कि लिपिड जो है वो बायलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स की प्रेजेंस और लिपिड्स की प्रेजेंस, मतलब कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं और किस जगह पे प्रेजेंट हैं, ये डिफरेंट है दोनों मॉडल्स में. हमारे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ये कंसीडर किया जाता था कि इनर एंड आउटर लेयर है प्रोटीन की और उसके बीच में लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल सैंडविच्ड है, राइट. लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बात नहीं है. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा मॉडल है जो कि प्रेजेंट किया था सिंगर एंड निकोल्सन. लेकिन हम इससे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को ज़रा रीड आउट कर लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है. Many biologists contributed to establish the structural organization of cell membrane. It was proposed earlier the cell membrane is composed of lipid bilayer sandwiched between inner and outer layer of proteins. पहले ये कंसीडर किया जाता था कि आउटर लेयर और इनर लेयर प्रोटीन्स की है और उसके बीच में लिपिड लेयर है. देखें, अगर आउटर लेयर प्रोटीन्स की है तो इसका मतलब हाइड्रोफिलिक जोन है, क्योंकि लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं. इसकी मैं आप लोगों को जनरल लाइफ से सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम एक वाटर के ग्लास में फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के ऐड करें तो वो दोनों मिसिबल नहीं होते, दे रिमेंस इमिसिबल. जो ऑयल है वो सरफेस पे आ जाता है और सरफेस पे ही रहता है, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से, और वाटर हमारा नीचे, कभी भी दोनों मिक्स नहीं हो पाते. तो इस वजह से जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है कि जो लिपिड्स हैं यानी कि ऑयल्स हैं हमारे, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि वो वाटर को रिपेल करते हैं, जबकि जो प्रोटीन्स हैं हमारे वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक जोन जो कि वाटर को अट्रैक्ट करता है. तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग ग्लोबुलर प्रोटीन सरफेस पे प्रेजेंट थे और उनके बीच में हमारा हाइड्रोफोबिक जोन था जो कि लिपिड बायलेयर बना रही थी, राइट. Modern technology has revealed that lipid layers are not sandwiched between the two protein layers. अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस करते हैं. डिस्कवरी आप लोग नोट करें सिंगर एंड निकोल्सन ने की थी. लिपिड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो लिपिड बायलेयर है वो प्रोटीन लेयर्स में सैंडविच नहीं होती, जबकि जो प्रोटीन्स हैं वो लिपिड लेयर में मोज़ेक मॉडल में पार्शली या होली एम्बेडेड होते हैं.
कहीं पे पार्शली एम्बेडेड हैं, कहीं पे होली एम्बेडेड हैं। ठीक है, एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये हम लोगों को डायग्राम प्रोवाइडेड है यहाँ पे किसकी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग ये हाइड्रोफिलिक जोन हम देख सकते हैं प्रोटीन्स का, हाइड्रोफोबिक जोन फॉर्म्ड ऑफ द लिपिड बाइलेयर एंड अगेन द हाइड्रोफिलिक जोन, राइट। और ये हमारे पास डायग्राम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। मैं आप लोगों को पहले डायग्राम से एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी। लिपिड्स बाइलेयर आप लोग देख सकते हैं कि सैंडविच नहीं है बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहीं पे होली एम्बेडेड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं और कहीं पे कम्प्लीटली एम्बेडेड है, जैसे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन देख सकते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं। ये जो टर्म्स यूज़ की गई हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन्स, इसको एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाएगा, मे बी इट विल टर्न सम काइंड ऑफ लेंथी टॉपिक, बट विल डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स फ्रॉम एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्रोटीन्स बेसिक कंपोनेंट है, 60 to 80% कवर कर रहा है और स्कैटर्ड है थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, देख सकते हैं इन एन इरेगुलर पैटर्न। कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, कोई कहीं पे एम्बेडेड है, कोई कहीं पे एम्बेडेड है। ये आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा जैसे छोटे छोटे आइसबर्ग्स हैं जो कि एक सी में फ्लोट कर रहे हैं, कहीं पे होली एम्बेडेड, कहीं पे पार्शली एम्बेडेड। ये जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोटीन्स की वो डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में भी डिफरेंट हो सकती है और इवन बोथ साइड्स जो सरफेस है मेम्ब्रेन की उनमें भी डिफरेंट हो सकती है। अगर अपर साइड पे कुछ और है तो लोअर साइड पे कुछ और है, राइट। अब हमारे पास प्रोटीन है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट हैं। ये कुछ प्रोटीन्स ये देखें जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आइदर होली एम्बेडेड और आइदर पार्शली एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोलिपिड्स को। फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्चुअली एक पार्ट है जिसके 2 लेयर्स हैं। वो इस वे में अरेंज हैं कि उनका जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो फेस करते हैं एक दूसरे को। अब ये कैसे करते हैं देखें, और जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखें सरफेस पे हम देख सकते हैं लिपिड बाइलेयर। लिपिड्स क्या हैं, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक जो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, जो टेल होती है ना, मैं आपको बताती हूँ। लिपिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, हेड एंड टेल। जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जबकि जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो जो हाइड्रोफोबिक हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेल इन फ्रंट ऑफ टेल, जबकि हेड अपर जोन पे है। तो हेड हाइड्रोफिलिक जोन बना रहे हैं, जबकि जो हमारे टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक जोन बना रहे हैं और हाइड्रोफोबिक जोन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप लोग ये येलो मेंशन देख सकते हैं। ये येलो जो पोर्शन मेंशन है ये कोलेस्ट्रॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉइड्स। ये आप लोगों को वेज के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में सम इंटरवल्स पे एम्बेडेड है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ कोलेस्ट्रॉल मेंशनड है, या इंटेग्रल प्रोटीन्स के आगे देख सकते हैं, फॉस्फोलिपिड के आगे देख सकते हैं। तो ये कुछ इंटरवल्स के बाद कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आइदर अटैच्ड टू द प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये देख सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, और आइदर अटैच्ड टू लिपिड्स जो कि ग्लाइकोलिपिड्स हैं। ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ देख सकते हैं ग्रीन में आप लोगों को ये शो किया गया है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जनरली आउटर साइड पे होते हैं मेम्ब्रेन के, ठीक है। इसी के साथ साथ साइटोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो पोर्शन इज़ रिप्रेजेंटिंग द फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। ये कौन से फिलामेंट्स हैं, ये हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि इनर सरफेस पे मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं और ये मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब एमसीक्यू है, लास्ट ईयर 2022 में नम्स एग्ज़ाम में पूछा गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल क्यों होती है, क्योंकि जो इसके देयर 2 हाफ सर्फेसेस एंड हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल। बेसिकली देयर 2 सर्फेसेस एंड हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल। यही वो लाइन थी जो कि ऑप्शंस में पूछी गई थी कि ये क्यों एसिमेट्रिकल हैं। आई एम रिपीटिंग द लाइन, their 2 surfaces and halves are not identical. That's why plasma membrane is asymmetrical. Please note down this line. Their 2 surfaces and halves are not identical. Right? अब हम इसकी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाने के लिए। यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन ही पढ़ सकते हैं कि मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डेवलपमेंट में वर्क किया।
तो सबसे पहले 1925 में गॉर्टर एंड ग्रेंडल ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिपिड 2 लेयर्स थी लिपिड मॉलिक्यूल्स की, वो डिस्कवर की। इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, जे एफ डैनियल एंड डेवन इन 1935। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि लिपिड बाइलेयर ये प्रोटीन्स के साथ कवर्ड होती है और इसमें प्रोटीन पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद रॉबर्टसन ने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमने अभी डिस्कस किया, इट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन इन 1959। और उसके बाद एस जे सिंगर एंड जी एल निकोलसन ने 1972 में फ्लोइड मज़ैक मॉडल प्रपोज किया। देखें ये जो नेम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये समटाइम्स एमडी कैड में पूछे जाते हैं। आई एम रिपीटिंग द नेम, एस जी सिंगर एंड जी एल निकोलसन इन 1972 proposed द फ्लोइड मज़ैक मॉडल। अब हम इसके कंपोनेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। प्रोटीन्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स। अब हम इनके फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, इनके बेसिकली फंक्शंस क्या हैं। तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये देख सकते हैं आप लोग, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो इसको परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं या फ्लूइडिटी देते हैं। फ्लूइडिटी या परमिएबिलिटी, लचकदार, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये किस वजह से, देखें जब सर्दियाँ हो जाती हैं, वेरी कोल्ड टेम्परेचर इन विंटर्स, जब टेम्परेचर माइनस में आ जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप कर जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, तो क्या होता है, तब देखें जो इनके कंपोनेंट्स हैं ना वो फ्रीज़ हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जो फॉस्फोलिपिड है वो कोलेस्ट्रॉल, ये फॉस्फोलिपिड्स अपनी फ्लूइडिटी या परमिएबिलिटी की वजह से सेल मेम्ब्रेन को फ्रीज़ होने से बचाता है और सेल के प्रॉपर फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यू करता है। तो जब ये एमसीक्यू पूछा जाए कि विच ऑफ द कंपोनेंट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी एंड परमिएबिलिटी, देन वी विल चूज़ द ऑप्शन फॉस्फोलिपिड्स। जो कंसनट्रेशन है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की फॉस्फोलिपिड्स में, वो बाइलेयर को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा फ्लूइड बनाती है। इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, हमने देखा कि ये येलो पोर्शन कोलेस्ट्रॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल नॉन पोलर होता है, मतलब ये चार्ज नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका देख लेते हैं कि ये मेम्ब्रेन को लेस फ्लूइड बनाता है हायर टेम्परेचर में। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो हम लोगों की ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई थिक विस्कस चीज़ है तो वो भी लूज़ हो जाती है, लेस फ्लूइड हो जाती है हाई टेम्परेचर पे। जब हम हीट करते हैं, जैसे हनी है, वैक्स है और ऐसी कुछ और सब्सटेंसेस है जिनको हम हीट करें तो वो लेस फ्लूइडिटी हो जाती है उनकी, ठीक है। और हाई टेम्परेचर जब होता है तो विस्कस हो जाते हैं, हनी भी विस्कस हो जाता है, वैक्स भी विस्कस हो जाती है, तो मोर फ्लूइड हो जाते हैं लो टेम्परेचर्स पे, ठीक है। ऐसे केस में लेस फ्लूइड हो जाते हैं लो टेम्परेचर पे। तो कोलेस्ट्रॉल इनको स्टेबलाइज करता है लिपिड बाइलेयर को, और ये पोलर मॉलिक्यूल्स और आइंस की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो बेसिकली नॉन पोलर है और नॉन पोलर सिर्फ नॉन पोलर को अलाउ करेगा, जबकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं वो इधर से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं उनकी एंट्री। प्रोटीन्स देखते हैं। प्रोटीन्स हमने डिफरेंट टाइप की यहाँ डिस्कस की हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं, इंजाइम्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, एंटीजन्स हैं। यस, इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहले हम चैनल प्रोटीन्स को देखते हैं। चैनल प्रोटीन्स एज द नेम रिप्रेजेंट सिंपली वो हैं जो कि सब्सटेंसेस को मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कैरियर प्रोटीन्स वो हैं जो कि सब्सटेंस को कंट्रीब्यूट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कैरियर नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैरियर मतलब उठाने वाला। इसके बाद इंजाइम्स हैं, कुछ इंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, इंजामेटिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जैसे कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कौन कन्वर्ट कर रहा है, एडिनिलेट साइक्लेज। ये एक इंजाइम है जो कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर रहा है। अब है रिसेप्टर्स। कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। एग्जांपल दूंगी मैं कि हार्मोन्स जो है वो सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट सेल्स के साथ ही बाइंड करते हैं। किस वजह से बाइंड करते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की वजह से, ठीक है। अब हार्मोन्स इतने ज़्यादा हमारे सेल में प्रेजेंट हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, अब कौन से हार्मोन को कैसे पता चलेगा कि उसने कैसे जाके कहाँ पे फंक्शन करना है, कहाँ पे उसको ज़रूरत है। तो जिस सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, हार्मोन सिर्फ उन टारगेट सेल्स के पास जाएगा और उनके साथ वर्क करेगा। इसी के साथ साथ एंटीजन्स क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीजन हैं जो कि सेल को अनेबल करते हैं कि वो रिकग्नाइज कर सकें अदर टाइप ऑफ सेल्स, जैसे कि फॉरेन एंटीजन है वो रिकग्नाइज हो सकता है इम्यून सिस्टम के ज़रिए। और जो प्रोटीन्स हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं हमारी मेम्ब्रेन को, राइट।
इसी के साथ साथ हम ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं, जैसे कि हमारे इनको हम सेल सरफेस मार्कर्स भी कहते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स सेल सरफेस मार्कर्स, इनका क्या फंक्शन होता है? तो ये एक्ट एज अ रिकग्नाइजेशन साइट या रिसेप्टर साइट के तौर पे एक्ट करते हैं। और रिसेप्टर साइट किसके लिए? फॉर हार्मोन्स, फॉर नर्व इम्पल्सेस, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एंटीजन्स हैं, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, वी ऑल नो द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इसी तरह डिफरेंट जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन पर, राइबोसोम, रेड ब्लड सेल्स की, न्यूरोट्रांसमीटर्स की और हार्मोन्स की। इसी तरह जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फंक्शन है वो है सेल टू सेल रिकग्निशन, कि सेल ने किसके साथ स्टिक करना है, करेक्ट सेल्स, ताकि जो करेक्ट सेल्स हैं वो एक साथ स्टिक कर सकें। ये यूँ समझ लें कि एक शॉप है, उस पर साइन बोर्ड है, या एयरपोर्ट पे जब आप लोग किसी को वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग साइन बोर्ड्स लेके खड़े होते हैं, ताकि आपके आने वाले गेस्ट को पता चल सके कि उसने किसके पास जाना है, कौन उसको रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ है। इसी तरह शॉप्स पे साइन बोर्ड्स होते हैं कि ये फ़लाँ शॉप है, ये कन्फेक्शनरी शॉप है, ये बेकरी है, या पटिसरी है। इस तरह डिफरेंट जो है साइन बोर्ड्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि ये हमारी जो टारगेटेड साइट है। तो ये समझ लें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का भी यही काम है, ये सेल सरफेस मार्कर के तौर पे काम करते हैं और एक सेल को प्रॉपरली स्टिक करने के लिए या रिकग्निशन के लिए काम करते हैं। अब रेगुलेशन को हम डिस्कस करेंगे सेल इंटरेक्शन की इन्वायरमेंट के साथ। बेसिकली ये हम इसका समझ लें फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। द प्रोटीन layers are not continuous and not confined to the surface of membrane but are embedded in lipid layers in mosaic manner. This discovery led to the proposal of fluid mosaic model. This model represents the most accepted one क्योंकि इसके बाद इससे लेटेस्ट अभी तक कोई मॉडल डिस्कवर नहीं हुआ। सेल मेम्ब्रेन also contain charged pores. Point to be noted here, charged pores जो कि movement अलाउ करते हैं both by active and by passive transports. Active transport that requires ATP and passive transport which do not requires any kind of ATP. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज़ वन ऑफ द वाइटल रोल्स इट प्लेस फॉर द सेल। देखें, ऐसा नहीं है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हर किस्म के मटेरियल्स को अलाउ करे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ सेल के अंदर। नो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसको डिफ्रेंशिएटली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अनलाइक सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है, वो हर तरह के मटेरियल को अलाउ करती है, लेकिन जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन है डिफ्रेंशिएटली परमिएबल है। किस वजह से डिफरेंट है? चार्ज्ड पोर्स की वजह से। इट ऑफर्स अ बैरियर बिटवीन द सेल कॉन्टेंट्स एंड देयर एनवायरनमेंट, जो कि सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को पास करने के लिए अलाउ करती है। इसी वजह से इसको डिफरेंशिएटली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। वो सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्यूबल हैं वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन्स के ज़रिए। इसी वजह से ये मटीरियल का जो फ़्लो है उसको मेंटेन करता है और एक डेफिनेट ग्रेडियंट क्रिएट करता है। बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, ये न्यूट्रल होते हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये इजीली क्रॉस कर जाते हैं। जबकि जो आइंस हैं, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इनको कुछ डिफ़िकल्टी होती है क्रॉस करने में। बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि नहीं नीड होते वो बी सेल के ज़रिए एंटर होते रहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट जिसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। वाइल अदर्स आर टेकन अप अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मतलब कि जो नॉर्मल कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो होता है हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, जबकि अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है लोअर टू हायर कंसनट्रेशन। Uphill movement of material requires energy and it is termed as active transport. Energy used for this movement is provided by ATP. इसी के साथ साथ एनिमल सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग्स बनाता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। इस टाइप ऑफ इनटेक को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि फेगोसाइटोसिस भी हो सकता है। फेगोसाइटोसिस मींस इनगल्फ करना सॉलिड पार्टिकल्स को, और मे बी पाइनोसाइटोसिस जो कि लिक्विड मटेरियल का इनटेक है। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है वो इम्पल्सिस को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर टू कीप कोऑर्डिनेशन, राइट। अब इसी के साथ साथ हम रेगुलेशन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डीपली कि रेगुलेशन कैसे होती है या सेल का इंटरेक्शन कैसे होता है इसके एनवायरनमेंट के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए। तो देखें, ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है और ये वेस्ट सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करता है और सिक्रीट करता है यूज़फुल सब्सटेंसेस को। अपना ये परफेक्ट ग्रेडियंट क्रिएट करता है, आयोनिक ग्रेडियंट्स, जो कि असेंशियल है नर्वस या मसल एक्टिविटी के लिए। इसी तरह सूटेबल जो पीएच है उसको ये मेंटेन करता है, और आयोनिक कंसनट्रेशन इंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से जो सेल के अंदर आयोनिक कंसनट्रेशन है या पीएच है उसको मेंटेन किसने करना है? सेल मेम्ब्रेन ने। इसी के साथ साथ होम्योस्टेसिस,
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है मूवमेंट ऑफ वाटर और बायोमॉलिक्यूल्स और आयंस की को रेगुलेट करके, राइट। अब हमने यहाँ पे लास्ट लाइन को डिस्कस किया, नर्व इम्पल्स। जो न्यूरॉन्स हैं सेल मेम्ब्रेन उनमें ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सिस को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर टू कीप कोऑर्डिनेशन। परमिएबिलिटी को हमने डिस्कस कर लिया है कि जो स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली डिफ्यूज होते हैं, जिनमें वाटर है, अमोनिया है, एथेनॉल यानी कि अल्कोहल है या यूरिया है। और जो लार्ज अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स हैं डेट इंक्लूड्स ग्लूकोज एंड सक्रोज that are not permeated by the protein free lipid bilayer, right? और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास आइंस हैं, लिपिड बाइलेयर्स आर हाईली इम्परमिएबल टू चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स और आइंस, क्योंकि ये चार्ज्ड हैं, और लिपिड बाइलेयर्स जो हैं वो अनचार्ज्ड हैं, इस वजह से ये हाईली इम्परमिएबल हो जाता है। इसी के साथ साथ हम ट्रांसपोर्ट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि लोअर टू हायर कंसनट्रेशन होती है विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट इसका ऑपोजिट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स क्या क्या होती हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हो सकती हैं डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। ये इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इससे आई गेस 4 एमसीक्यूज एमडीकैट में पूछे जाते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और गेट्स, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फिर डिफ्यूजन क्या है? सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकती है अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, या फिर चैनल प्रोटीन्स के ज़रिए जो डिफ्यूजन होगी उसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे, वो डिफ्यूजन जो कि गैस मॉलिक्यूल्स करते हैं। इसी तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास एक टर्म है। फैसिलिटेटेड नाम से हमें द नेम इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग फैसिलिटेटेड, कोई चीज़ उसको फैसिलिटेट कर रही है, सहूलत मुहैया कर रही है, यानी कि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं जैसे कि ग्लूकोज है या अमाइनो एसिड है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ऑस्मोसिस क्या है? ये एमसीक्यू इतनी ज़्यादा दफ़ा पूछा जाता है और इट्स रियली अ सिंपल एमसीक्यू, बट डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन दिस एमसीक्यू, और वो ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन के साथ मिक्सअप कर देते हैं। देखें, डिफ्यूजन इज़ समथिंग एल्स एंड ऑस्मोसिस इज़ टोटली अ डिफरेंट टर्म। ऑस्मोसिस इज़ बेसिकली कन्फाइंड फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। प्लीज़ कंसिडर इट इज़ यूजली ओनली फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, थ्रू डिफ्रेंशिएटली परमिएबल मेम्ब्रेन। कंसनट्रेशन हायर टू लोअर ही है, लेकिन मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की और डिफ्रेंशिएटली परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए, ठीक है। और एंडोसाइटोसिस इनवर्ड मूवमेंट होती है मटेरियल की, इन फोल्ड्स बनाता है सेल मेम्ब्रेन वैक्यूल्स की फॉर्म में, और उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हमने फेगो और पाइनो पढ़ लिया। इसी के साथ साथ देखें एक्सोसाइटोसिस भी होती है। एक्सोसाइटोसिस में जो मटेरियल है वो सेल से एक्सक्रीट होता है, बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या सिक्रीशंस हैं वो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए हमारी मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं। अब अगेन एमसीक्यू के वो प्रोसेसेस जो एनर्जी रिक्वायर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एज द नेम रिप्रेजेंटिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, along with it endocytosis and exocytosis and pumps. All of these other than active transport also requires energy in the form of ATP. Please note this point कि जो pumps हैं वो भी active transport को follow करते हैं, जबकि osmosis है वो passive transport है। osmosis में expenditure of energy नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और पम्प्स ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आप लोग ये पॉइंट्स को नोट डाउन करें। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और पम्प्स ये एनर्जी यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारा ऑस्मोसिस है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस में डिलीशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है। अब ये कैसे होती है? देखें, एक सेल है, लिक्विड मटेरियल इनटेक कर रहा है। लिक्विड मटेरियल इनटेक करने के लिए उसने अपने आप को इनफोल्ड करना है, अंदर की तरफ धंसना है, ताकि वो मटेरियल को इनगल्फ कर सके, ठीक है। वो धंसेगा अंदर, मटेरियल को लेगा और फिर उसके ऊपर नई मेम्ब्रेन बनाएगा। तो इस सारे प्रोसेस में डिलीशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट। और एक्सोसाइटोसिस में एडिशन होती है। जब मटेरियल एक्सक्रीट हो गया, वो मटेरियल चला गया, वो अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही पैक होके गया, और तब जो सेल में डिलीट हुई होती है वो दोबारा एडिशन हो जाती है उस सेल मेम्ब्रेन की। आई डोंट नो इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, लेकिन पाइनोसाइटोसिस में डिलीशन होती है और एक्सोसाइटोसिस में एडिशन होती है सेल मेम्ब्रेन की। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मैं जितनी इंपॉर्टेंस आप लोगों को बयान करूँ उतनी कम है। ये
इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ एमसीक्यूज शेयर कर रही हूँ कि प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड मीन्स। एमसीक्यू सुने, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के लिपिड बाइलेयर का एक सी है और उसमें प्रोटीन्स आइसबर्ग्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज़ इट रिप्रेजेंटिंग? तो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, यू नो इट वेरी वेल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, राइट? ये एमसीक्यू है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करते लिपिड बाइलेयर में, ये आप लोग बात नोट कर लें। प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करते। प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं विद इन द लिपिड बाइलेयर। प्रोटीन्स कन्फाइंड भी रह सकते हैं विद इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रोटीन कम्प्लीटली एम्बेडेड भी होते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, लेकिन प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं शो करते। इसी के साथ साथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं उनकी रेशो क्या होती है? तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट अबाउट 30%, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन 30% एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन 70%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि क्या है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रपोजेस दैट lipid bilayer with proteins of two types, embedded intrinsic and superficial extrinsic। ये भी हमारा एक एमसीक्यू था। इसी के साथ साथ ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं फ्रॉम बोथ एफएससी एंड एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू। लेक्चर आई नो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, बट आप लोग इसको अच्छे से रीड करें, अच्छे से अपने चैप्टर को प्रिपेयर करें। ये चैप्टर एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। And according to our slogan, there is no one should be left behind. No one should be left behind may seems a simple term कि कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, but it holds a very major aspect, very wide aspect of thinking कि देखें कोई भी इस दौर में पीछे नहीं रहना चाहिए। इल्म की दौर है, एजुकेशन है, एजुकेशन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तालीम हमें जितनी ज़्यादा हम लोग शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ उतना ज़्यादा है। देखें ये इल्म फैलाने का एक सफ़र है, ठीक है। और इस सफ़र में आप लोग भी शामिल हों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को अच्छे रिसोर्सेज, अपने फ़ेलोज़ को अच्छे रिसोर्सेज बताया करें कि जहाँ से आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि देखें पढ़ना हर किसी ने अपना अपना होता है, हर किसी का अपना डेस्टिनी, अपना फेट है, अपना नसीब है। लेकिन जहाँ तक इंसान कोशिश कर सकता है वो है सिर्फ मेहनत करना, और मेहनत हर इंसान को करते रहना चाहिए। और अपनी बुक्स पे ज़्यादा फोकस करें। और बायो का मेजर पोर्शन होता है, एमडी कैट में भी 68 मार्क्स होते हैं। एफएससी में भी आप लोगों को पता है कि बायो ही कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज इट हैज़ अ वेरी लेंथी सिलेबस। तो आप लोग कोशिश करें कि बायो जो जो पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ प्रिपेयर करें। उसको साथ साथ आप लोग एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि ग्रिप का जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एफएससी के साथ साथ एमटीकेट को भी कवर अप करें तो ग्रिप का क्वेश्चन बैंक परचेज़ कर लें। जो आप लोगों ने यहाँ पे एफएससी में पढ़ा है उसको साथ साथ एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते जाएँ कि आखिर एमटीकेट में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एमटीकेट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एमटीकेट इज़ नथिंग न्यू। जो आप लोगों ने पढ़ा है वही आएगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा टेक्निकली हमने इसको डिस्कस करना होता है, जैसे कि साइंटिस्ट के नेम्स हैं या कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो डायग्राम्स में रिप्रेजेंटेड हैं लेकिन हमारे थ्योरी में नहीं लिखी हुई हैं, वैसी टर्म्स पूछ ली जाती हैं। जैसे कि आज के टॉपिक में हमने सारी वो टर्म्स डिस्कस की जो सिर्फ डायग्राम में मेंशन थी लेकिन हमारे पीटीबी में मेंशन नहीं थी। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, और जो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ उसको अपनी बुक्स पे नोट डाउन करते जाया करें। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।